Hello everyone, my name is Akhil. Welcome back to my YouTube channel Amazing Paramedical. Students, in today's video lecture, we are going to discuss about a very interesting topic, that is anticoagulants. It is one of the most important topic for all the medical students. From this topic, many questions will be asked for your theory exams, practical exams, and even in your interviews also. So make sure that you watch this video till end. Let's begin. Students, anticoagulants are the medications that prevent the coagulation or clotting of blood. Basically, anticoagulants are the chemicals that will not let the formation of clot inside our blood, and they will achieve this by interfering with the action of clotting factors. स्टूडेंट्स, एंटीकोगुलेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बॉडी में कहीं ब्लीडिंग होने लगती है तो थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से. ये क्लॉट फॉर्मेशन होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से. स्टूडेंट्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं जिनको लिवर प्रोड्यूस करता है. टोटली 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं एंड ये इनएक्टिव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई शो यू हियर देयर इज अ लिस्ट ऑफ 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स. जब भी कहीं ब्लड वेसल रप्चर होकर ब्लीडिंग होने लगता है तब ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स चेन सिस्टम की तरह एक दूसरे को एक्टिव करते करते सारे एक्टिव हो जाते हैं एंड क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 10-9 को एक्टिव करेगा, 9-8 को, 8-7 को, 5-4 को. सो इस तरह एक चेन सिस्टम में ये एक दूसरे को एक्टिव करने लगते हैं. ओके, सो इन फैक्टर्स का इनएक्टिव रहना जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव ही रहेंगे तो हमारी बॉडी में सारा ब्लड क्लॉट हो सकता है स्टूडेंट्स, एंड ये सारा ब्लड क्लॉट होने की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है. सो आवर बॉडी यूजेस डिफरेंट केमिकल्स, enzymes and natural anticoagulant, that is heparin. Okay, that is heparin, that is naturally present in our body to keep them inactive. Okay, so if they remain inactive, then there will be prevention of clotting inside our body. Okay, so this is how our body will keep them inactive, students. Okay, yes students, anticoagulants सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को नहीं रोकते हैं. ओके, बट स्पेसिफिकली एक या दो क्लॉटिंग फैक्टर्स को ही टारगेट करके उनके साथ बाइंड होकर उनका जो चेन सिस्टम में एक्टिव होने का जो प्रोसेस है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं या तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन या क्लॉटिंग हो ही नहीं पाता स्टूडेंट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई शो यू हियर इन द इमेज, यहां से अगर 5-4 को एक्टिव कर रहा है, 4th 3rd को या 3rd 2nd या 2nd 1 को एक्टिव कर रहा है, सो एंटीकोगुलेंट क्या करेगा, यहाँ पे स्पेसिफिकली बीच में से एक को ही बाइंड कर लेगा, बाइंड करके ये चेन सिस्टम ब्रेक कर देगा स्टूडेंट्स. ओके, सो दिस इज हाउ एक्चुअली इट विल वर्क. ओके, यस. सो guys, for diagnosis purpose, as soon as we take blood out of our body in a container, within few minutes the blood will get clot, then the diagnosis will be unsuccessful. Okay, so in many diagnostic procedures we need unclotted blood sample to perform tests, so we take help from anticoagulant students. Okay, so in laboratories and blood banks, anticoagulants are used inside vacutainers and blood bags students. Okay, so vacutainers are nothing but these are the sterile glass या plastic tubes होता है students. In the image if I show you here, yes, here we have got vacutainers. इनको हम vacutainers बुलाते हैं. ये कैसे होते हैं students? ये sterile glass या plastic test tube होते हैं जिनका एक unique color top होता है students. Okay, सारी unique color top में होते हैं. Okay, so this specific color tube top will indicate the type of anticoagulant present in the vacutainer students. Okay, ये specific या unique color tube top जो यहाँ पे देख रहे हो students आप लोग, ये क्या जानकारी देता है हम लोगों को, इस ट्यूब के अंदर कौन से टाइप का anticoagulant present होता है. Okay, so this is how these vacutainers will work. Okay, yes. So in the procedure, as you all know, there's a procedure called as phlebotomy. Okay, phlebotomy और जिसको commonly हम लोग vein puncture करके बोलते हैं students. Okay, so here in the image if I show you, yes, here we have got the image of
phlebotomy. Okay, here as you can see, with the help of needle the vein is getting punctured here, and from the vein the blood is collected in a vacutainer. ओके, सो दिस फ्लेबोटमी और वेन पंक्चर करने के बाद जो ब्लड हम एंटीकोगुलेंट रहने वाले, हियर एज यू कैन सी देयर इज अ वैक्यूटेनर, एंटीकोगुलेंट रहने वाले वैक्यूटेनर में या कोई ब्लड बैग के अंदर जो कलेक्ट करते हैं उसमें किसी भी तरह का क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है स्टूडेंट्स। क्यों क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है? क्योंकि ऑलरेडी इस वैक्यूटेनर के अंदर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द introduction part. Now we'll discuss the functions of anticoagulant students. Okay, yes, so the first function of anticoagulant is it is widely used in medical laboratories, hospitals and research facility centers, etc. Okay, and the second function is it is used in most of the lab tests students where the blood is used as a sample. जहां जहां पे blood एक sample की तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कई सारे लैब टेस्ट में या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में, वहां एंटीकोगुलेंट्स बहुत कॉमनली यूज किया जाता है उस ब्लड को क्लॉट होने से बचा कर रखने के लिए। ओके, द थर्ड मेन फंक्शन इज इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए मेडिसिन और ब्लड थिनर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये एंटीकोगुलेंट्स बहुत से क्लिनिकल कंडीशंस जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हार्ट स्ट्रोक जैसे इन सारे कंडीशंस को ट्रीटमेंट के लिए भी ये एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। ओके, एंड टू प्रिजर्व द ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्रोडक्ट्स इन द ब्लड बैंक ऑल्सो इट इज यूज्ड। ओके, यस, so now we'll see the types of anticoagulants. Here I have got 8 types of anticoagulants students. Okay, the 8 types of anticoagulants are EDTA, heparin, sodium fluoride, sodium citrate, ACD, CPD, CPDA, CPDA with SAGM. Okay, so here in this video students we'll discuss the first 4, the anticoagulants that are used in laboratories. In my next video I'll be explaining the next 4, the anticoagulants which are only used in blood banks. Okay, so the first anticoagulant is EDTA now. Okay, EDTA which is also known as ethylene diamine tetraacetic acid. This is the full form of EDTA students. Please remember this full form. Why? Because ये full form interviews में बहुत commonly पूछा जाता है। Okay, yes. So EDTA, इसका ट्यूब टॉप कलर क्या होगा स्टूडेंट्स? एज ए कैन if I show you here, yes, here I've got the first टेस्ट ट्यूब जो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, इसको EDTA वैक्यूटेनर बोलेंगे क्योंकि इसका पर्पल कलर टॉप है। ओके, यस, सो EDTA ट्यूब टॉप कलर क्या रहेगा? इसका पर्पल या लैवेंडर रहेगा। ओके, एंड इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा स्टूडेंट्स? EDTA प्रिवेंट्स द कोएगुलेशन बाय बाइंडिंग विद कैल्शियम आयंस, जो कि एक क्लॉटिंग फैक्टर 4 होता है विच इज एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन कैस्केड। ओके, EDTA कैसे काम करता है स्टूडेंट्स? ये एंटीकोगुलेंट EDTA जैसे ही EDTA टेस्ट ट्यूब में जैसे ही हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं, उस ब्लड के अंदर रहने वाले 4th क्लॉटिंग फैक्टर जो कि कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम को EDTA बाइंड कर लेता है स्टूडेंट्स। जैसे ही इसके साथ बाइंड कर लेता है, ये पूरा चेन सिस्टम ब्रेक हो जाता है और ये क्लॉटिंग प्रोसेस एक्टिव ही नहीं हो पाता है। सो ये इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। सो कितने प्रोपोर्शन में यूज करेंगे या कितने क्वांटिटी में यूज करेंगे? हम इसको 1 to 2 mg पर ml ऑफ ब्लड में यूज करेंगे। ओके, एंड इसके यूजेस क्या होंगे? इट इज वाइडली यूज्ड एंटीकोगुलेंट फॉर रूटीन हेमाटोलॉजी, CBC, एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट एक्सेट्रा। एक वाइडली यूज्ड एंटीकोगुलेंट है स्टूडेंट्स जो हेमाटोलॉजी जैसे कि CBC टेस्ट के लिए, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए, इन सारे टेस्ट में कॉमनली यूज किया जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे स्टूडेंट्स? Changes in blood products occur if blood sample is stored for long duration in EDTA students. अगर blood sample को बहुत ज़्यादा वक्त के लिए या बहुत ज़्यादा समय के लिए EDTA टेस्ट ट्यूब में अगर रखा जाएगा तो ब्लड के जो प्रोडक्ट रहेंगे जैसे कि RBC हो सकता है, WBC हो सकता है, प्लेटलेट हो सकता है, उनमें चेंजेस आने लगते हैं। वो चेंजेस कैसे होंगे स्टूडेंट्स? जैसे कि क्रेनेशन या स्पीरोसाइट्स इन द RBCs। ओके, एज यू कैन सी हियर इन द इमेज हियर, ये नॉर्मल आरबीसी का शेप होता है स्टूडेंट्स, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसका डिस्क शेप होता है। ये नॉर्मल शेप ऐसे क्रेनेशन होने लगता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो देख सकते हो शेप बदल चुका है, इसको क्रेनेशन करके बोलेंगे। ओके, सो ऐसा शेप बदलने लग जाता है उनका, या उनका स्पीरोसाइट होने लगता है। यहाँ पे राउंड 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 जो शेप देख रहे हो आप लोग, इसको स्पीरोसाइट्स बोलते हैं। ओके, सो इस शेप में वो बदलने लगते हैं। ओके,
लॉस ऑफ ग्रैन्यूल्स इन न्यूट्रोफिल्स, जो न्यूट्रोफिल्स जो एक टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी रहेंगे वो भी डैमेज होने लग जाएंगे। और थर्ड डिसइंटीग्रेशन है, डिक्रीज्ड काउंट ऑफ प्लेटलेट, जो भी प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहेंगे ब्लड के अंदर वो उनके काउंट में डिक्रीज होने लगेगा, वो सारे कम होने लगेंगे या डिसइंटीग्रेट होने लगेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ईडीटीए, द फर्स्ट एंटीकोगुलेंट स्टूडेंट्स। ओके, यस, the second anticoagulant will be heparin, and the heparin tube top color will be green, as you can see here in the image. Yes, here we have got the vacutainer of heparin, okay, with the green top, students. This is EDTA and this will be heparin. Okay, yes. The heparin mode of action क्या रहेगा, ये कैसे एक्शन अपना परफॉर्म करेगा? heparin enhances antithrombin 3 activity which will inactivate clotting factors thrombin 2A, 9th factor, 10th factor and 12th factor. ओके, सो हेपारिन क्या करेगा? एंटीथ्रोम्बिन 3 नाम के केमिकल को एक्टिव कर देगा। सो एंटीथ्रोम्बिन 3 क्या करेगा? थ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर, 9th क्लॉटिंग फैक्टर, 10th क्लॉटिंग फैक्टर और 12th क्लॉटिंग फैक्टर को इनएक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से फिर से क्लॉटिंग प्रोसेस एक्टिव नहीं हो पाएगा। ओके, सो ये कितने क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे हम? 2 mg पर 10 ml ऑफ ब्लड में इस्तेमाल करेंगे। पर 10 ml ब्लड में 2 mg का हेपारिन रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, यस, इसके यूजेस क्या होंगे, कहाँ इसको यूज करेंगे? इट इज यूज्ड इन मोस्ट जनरल केमिस्ट्री टेस्ट में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट में, एंजाइम्स के टेस्ट में, या आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओके, द थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर इज सोडियम फ्लोराइड स्टूडेंट्स। सोडियम फ्लोराइड का ट्यूब टॉप कलर क्या होगा? दैट विल बी ग्रे। Okay, the gray tube top color will be there here. Here we have got the gray tube top color, so this will be sodium fluoride. Okay, yes, sodium fluoride उसका mode of action कैसे रहेगा? The potassium oxalate acts as an anticoagulant by binding with calcium ions, whereas sodium fluoride acts as a anti-glycolytic enzyme inhibiting enolase that is involved in the breakdown of glucose. Students, सोडियम फ्लोराइड के अंदर, इस एंटीकोगुलेंट के अंदर पोटेशियम ऑक्सैलेट नाम का भी केमिकल रहेगा। वो क्या करेगा? वो एक एंटीकोगुलेंट की तरह काम करेगा, मतलब कैल्शियम आयन को बाइंड कर लेगा, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 4 रहेगा, इसके साथ बाइंड होकर क्लॉटिंग प्रोसेस को तोड़ेगा, क्लॉटिंग प्रोसेस नहीं होने देगा। सेकेंड थिंग, जो सोडियम फ्लोराइड रहेगा, सोडियम फ्लोराइड क्या एक्टिविटी करेगा स्टूडेंट्स? जो कि ब्लड में रहने वाले, जो कि एक एंटीग्लाइकोलाइटिक एंजाइम की तरह काम करेगा। ओके, व्हाई? बिकॉज हमारे ब्लड के अंदर एक इनोलेज एंजाइम होता है। जैसे ही बॉडी के बाहर जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, ये इनोलेज एंजाइम क्या करने लगता है? ब्लड के अंदर रहने वाले ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने लग जाता है। अगर वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने लग गया तो ब्लड में रहने वाले प्रोडक्ट्स को, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज को, उनको एनर्जी नहीं मिल पाएगी स्टूडेंट्स। ओके, सो जिसकी वजह से इनोलेज को रोक कर रखना जरूरी होता है, जिसके लिए सोडियम फ्लोराइड क्या करेगा? एक एंटी ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम के तौर पे इनोलेज को रोक कर रखेगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा स्टूडेंट्स। ओके, सो कितने क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे इसको? 1 to 2 mg per ml। ओके, यस, यूजेस क्या होंगे? प्राइमरीली इट इज यूज्ड फॉर ग्लूकोज एस्टिमेशन। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेल यू, कोई एक पेशेंट आया है हमारे पास, जो कि जिसको अपना ग्लूकोज टेस्ट करवाना है, जिसको अपने ब्लड के अंदर का ग्लूकोज एस्टिमेशन करवाना है कि ग्लूकोज कितना प्रेजेंट है। ओके, अगर हम उस ब्लड को एक वैक्यूटोनर में कलेक्ट करके रख दिए एंड उसके अंदर रहने वाला इनोलेज एंजाइम अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर दिया थोड़ी देर के अंदर, एंड आफ्टर सम टाइम अगर हम वो टेस्ट कैरी आउट करेंगे, तो हम लोगों को एक ग्लूकोज का एक प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनोलेज उसके अंदर का ग्लूकोज को पूरा ब्रेक डाउन कर दिया रहता है स्टूडेंट। सो एक प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं मिल पाएगा, राइट? सो विच इज वाई व्हाट वी विल डू इज, हम लोग सोडियम फ्लोराइड वैक्यूटेनर का इस्तेमाल करेंगे। ये सोडियम फ्लोराइड जो ग्रे कलर का जो यहाँ पे वैक्यूटेनर देख रहे हो, इसके अंदर ये सोडियम फ्लोराइड क्या करेगा? ये इनोलेज को रोक कर रखेगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होगा। जो पेशेंट जो स्टार्टिंग में ब्लड देने के बाद जितना ग्लूकोज था, वही सेम ग्लूकोज का काउंट रहेगा, और जब हम टेस्ट करेंगे तो हम लोगों को एक एग्जैक्ट और एक एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा कि इसकी ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। ओके, यस, द फोर्थ एंटीकोगुलेंट इज सोडियम सिट्रेट, जिसका ट्यूब टॉप कलर होगा ब्लू कलर। ओके, एज यू कैन सी हियर इन द इमेज, yes, here we have got the sodium citrate vacutainer, okay, the blue top color। okay,
द मोड ऑफ एक्शन विल बी, इट विल बाइंड विथ अगेन कैल्शियम आयॉन्स के साथ बाइंड करेगा, उनको आयोनाइज्ड फॉर्म से अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से फिर से क्लॉटिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा। कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे हम इसको? 2 to 3 mg per ml of blood, and it is used primarily used for coagulation studies like prothrombin test या activated partial thromboplastin टाइम के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। ओके, द नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट इज नो एंटीकोगुलेंट, दैट इज नथिंग बट एसएसटी और सीरम सेपरेटिंग ट्यूब करके बुलाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, एज यू कैन सी हियर वी हैव गॉट टू टेस्ट ट्यूब्स हियर, येलो कलर वैक्यूटेनर एंड रेड कलर वैक्यूटेनर। ओके, सो दीज आर दी नो एंटीकोगुलेंट करके बोलेंगे इसको हम स्टूडेंट्स। ओके, यस, सो द ट्यूब टॉप कलर विल बी येलो रहेगा और एक रहेगा रेड रहेगा, येलो विथ एडिटिव्स एंड रेड विथ नो एडिटिव्स। ओके, इनका फर्क क्या होगा स्टूडेंट? सी हियर, द रेड टॉप ट्यूब्स आर प्लेन allowing natural clotting to produce the serum for biochemistry, serology and immune test. The yellow top tubes often containing a clot activator or a gel separator also produce serum but with faster clotting or easier separation for biochemical test. Red top जो टेस्ट ट्यूब रहेगा स्टूडेंट्स, उसमें किसी भी तरह का एंटीकोगुलेंट नहीं रहेगा और उसके साथ साथ उसमें किसी भी तरह के दूसरे मॉलिक्यूल्स भी नहीं रहेंगे, वो कंप्लीटली प्लेन टेस्ट ट्यूब रहेगा। उसके अंदर हम लोग जैसे ही ब्लड डालेंगे वो ब्लड थोड़ी देर में क्लॉट हो जाएगा, क्लॉट होने के बाद जो ऊपर जो फ्लूइड पोर्शन बच के रहेगा, एज यू कैन सी हियर इन द इमेज, इफ आई शो यू, हियर आई हैव गॉट, यस, एज यू कैन सी, यहाँ पे जो देख सकते हैं आप लोग रेड ट्यूब टॉप ट्यूब कलर है, इसके अंदर जो यहाँ पे ऊपर जो येलो कलर का जो फ्लूइड फॉर्म है ये होता है सीरम स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो चुका है। सो थोड़े बहुत ऐसे टेस्ट रहेंगे जहाँ पे हम लोगों को सीरम की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स। ओके, सो सीरम इज समथिंग विच इज लाइक, यहाँ पे जो क्लॉट यहाँ विथ इट इज विदाउट एनी एंटीकोगुलेंट स्टूडेंट, इसके अंदर किसी भी तरह के क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहेंगे और एंटीकोगुलेंट भी नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। Okay, and here we have got the plasma, and plasma is something which has got clotting factors in it and anticoagulant also. ओके, ये फर्क होता है सीरम और प्लाज्मा के बीच में। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज में। ओके, रिमेंबर दिस डिफरेंस, प्लाज्मा इज समथिंग विच हैज गॉट एंटीकोगुलेंट इन इट एंड विथ क्लॉटिंग फैक्टर ऑल्सो, इसके अंदर एंटीकोगुलेंट और क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट रहेंगे। सीरम ऐसा रहेगा जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर भी नहीं रहेगा, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर तो नीचे यहाँ पे क्लॉटिंग कर रहा है ब्लड का, और यहाँ पे ऊपर एक नो क्लॉटिंग फैक्टर विल बी देयर एंड नो एंटीकोगुलेंट विल ऑल्सो बी देयर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा। ओके, सो द रेड, दिस इज द रेड टॉप ट्यूब। ओके, येलो टॉप ट्यूब में क्या फर्क रहेगा इसमें यहाँ पे एक क्लॉट एक्टिवेटर रहेगा और एक जेल सेपरेटर रहेगा। क्लॉट एक्टिवेटर जो सिलिका पार्टिकल्स रहेंगे क्लॉट एक्टिवेटर का काम करेंगे, जो कि बहुत फास्ट क्लॉट करवाने में लाइक क्लॉटिंग को एक्टिवेट करेंगे, और जेल सेपरेटर रहेगा जो कि एक इनर्ट पॉलीमर जेल रहेगा, जो कि एक सेपरेटर की तरह काम करेगा स्टूडेंट्स। ओके, so this is all about the anticoagulants and types of anticoagulants and all, and even the functions also I have discussed in this video. So if you have any doubts or any questions related with this topic students or with this video, you can put all your doubts or questions in the comment section. I'll try to answer all your doubts. Okay, so in my next video I will be discussing about the anticoagulants that are used in the blood bank students. Okay, so please make sure that you watch that video also, so you can get a complete information on anticoagulant students. Okay, so till then keep watching my channel for more exciting videos. If you have not subscribed yet, please subscribe to my channel. Okay, so stay safe, keep learning, keep sharing. Thank you students.